اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس ریئلائزیشن، ہلائے جانے کو، جھنجھوڑے جانے کو دیکھیں گے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے اور اس کا نیگیٹو کیا ہے۔ اور آج نیگیٹو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کثرت سے زندگیوں کے اندر ہے، اور اگر 40 کلو نیگیٹو ہے تو 70 کلو پازیٹیو ہی اسے نکال سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ جو انسان پرانی اس انسانیت میں رہ کر نہیں کرنے کے قابل تھا، اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ آج جو مسیح کے خادم ہیں وہ 24 گھنٹے کیا ریلائز کرا؟ مسیح کی اس محبت کو، اور اس کو بھی آج ایک سوالیہ نشان زندگیوں نے، بھئی یہ کیسا خدا ہے؟ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جان دینے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر یہ ٹانگ توڑ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیماری میں ڈال دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ ابلیس ان کو نیگیٹیوٹی میں پہلے دن جو پہل چھوڑنے کی وہ خداوند نے انسان کی طرف پہل نہیں کی۔ خدا نے اسے اپنے گھر سے بعد میں نکالا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، خدا کبھی بھی انسان کو اپنے گھر سے نہ نکالتے اگر خدا کو انسان اپنے دل سے نہ نکالتا، اور پھر خدا کو انسان کو اپنے گھر سے نکالنا مجبوری تھی۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسے سمجھ پاتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس حالت میں وہاں رہ کر اگر حیات کے درخت میں سے کھا لیتا تو اس گناہگار کی حیثیت میں وہ ہمیشہ ابلیس کا فرزندہ، جہنم کا باشندہ ہوتا۔ خوشی کے ساتھ نہیں، دکھ کے ساتھ باہر کیا تاکہ اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اس کے گناہوں کا کفارہ دے، اسے واپس اس حالت میں لائے جو گناہ سے بیشتر تھی، اور پھر اسے حیات کے درخت میں سے کھانے کا موقع دے۔ اب تو کھا اس راست بازی کی حالت میں تاکہ تو ہمیشہ جیتا رہے میرے ساتھ۔ اس کی محبت کیا؟ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ احسان جتاتے ہیں۔ اس کی محبت تاکہ جو ریسیو کرے، جو قبول کرے، وہ خداوند کے پاس آ جائے۔ جب ہر طرف تاریکی تھی تو منہ سے کلام نکلا، روشنی ہو جا۔ تیرا کلام جہاں جس دور میں جس روپ میں آیا اس نے اثر دکھایا۔ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی۔ جب گھیر لیے گئے تو وہ جو آگ کا ستون آگے چلتا تھا، اسی نے پیچھے آ کر اگلی قوم کو روشنی بخش دی اور پیچھے والوں کو اندھیرا کر دیا۔ تیرا کلام شعلہ بھی ہے، آگ کی جھاڑی میں اپنے بندہ موسیٰ کو دیدار دیا۔ تیرا کلام شبنم بھی ہے، آسمان سے من برستا جیسے زمین پر شبنم آتی۔ اور دعا ہے کہ فرض جب ہم یہ گیت گانے چلتے ہیں تو اگر وہ سارے واقعات میری زندگی، میری اور آپ کی روح کا حصہ بنے تو پھر یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ، کیونکہ آپ کے اندر ایک واقعہ، ایک ایسا آپ کے اندر فقط یہ الفاظ نہیں ہیں، آپ کے اندر یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہو جائے گا۔ آپ اس کا ایک تجربہ پائیں گے۔ جھاڑی میں سے کلام وہ آپ کی زندگی میں، وہ کلام خداوند کرے گا۔ وہ اوس پہ من آیا، وہ آسمانی غذا کا مزہ چکھ پائیں گے ہم۔ خداوند اون تر ہو اور سراؤنڈنگ ساری اوس ہو۔ تیرا کلام شبنم بھی ہے، کسی نے تجربہ پایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے بزرگ جدون ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس روح میں ہو کر، اس گہرائی میں جا کر اس کی وہ پرستش کرنے والے ہو؟ تو وہ جو تجربہ انہوں نے ہمارے بزرگ جدون کو دیا وہ مجھے اور آپ کو نہ ملے۔ وہ شعلہ آئے اور وہ قربانی کو چٹ کر جائے اور خداوند اسے اپنا دیدار دے۔ کس روپ میں؟ یہوہ سلام، میں تیرا پیس ہوں، میں تیرا شلوم، میں تیری روح جان بدن شادمانی ہوں، اطمینان ہوں۔ چرچ کھو جایا کرے۔ انسان کا مگن ہونا ناممکن کے قریب ہے۔ ہم جب آ جاتے ہیں نہیں آ پاتے،
वो बारीक हैं जो प्रस्तश देखने नहीं। बहुत सारी जिंदगियां प्रस्तश देखने आती है और बहुत कम लोग हैं जो प्रस्तश करने आते हैं। मुबारक हैं जो प्रस्तश करने आते हैं। और इक्का दुक्का कभी कभार बीच में प्रस्तश करवाने वाले भी होते हैं, जिनका दिल चाहता है कि मेरी प्रस्तश की जाए। उसमें वो अपने आप को धोखा देता है। उसमें इस तरह से है, साथ रहिएगा, कि जिस तरह एक नेचुरल में, एक कुदरती तौर पर एक शख्स आईना के पास जाता है और वो अपनी शक्ल को देखता है और कुछ ही देर में वो अपनी शक्ल को भूल जाता है। यहां पर खुदाए कुदस हमारे बुजुर्ग याकूब के वसीला से हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह वो एक कुदरती शख्स जो रूहानी नहीं, ईमानदार की बात नहीं हो रही, जिस तरह वो आईना में अपनी शक्ल देखकर थोड़ी देर में भूल जाता है, उसी तरह हम जो ईमान लाने वाले हैं उन्हें खुदा ने जो शक्ल दी है, मसीह का हम शक्ल बनाया है, उन्हें रास्तबाज ठहराया है, उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा है, कुछ ही देर में अपनी उस हैसियत को, उस मकाम को जो मसीह में उन्हें मिला है, वो जब चर्च आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो जैसे वो आईना देखता है, उसी तरह वो लोग चर्च में आकर थोड़ी देर के लिए अपनी उस रूहानी शक्ल को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो भूल जाते हैं। अब साथ रहिएगा कि ये जो कलाम हुआ ये चर्च के लिए हुआ या चर्च से बाहर के लोगों के लिए, ये सवाल है। चर्च के अंदर की बात है, ये चर्च के बाहर की नहीं है। यानी चर्च के अंदर आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे। चर्च के अंदर की बात हो रही है कि चर्च के अंदर सारे एक जैसे नहीं मिलेंगे। चर्च के अंदर ही आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक ग्रुप कौन सा होगा? अच्छा, दोनों ग्रुप की एक बात कॉमन होगी, वो दोनों में होगी। वो क्या है? मसीह का कलाम सुनना। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसी बात है। दोनों खुदावंद का, दोनों मसीह का कलाम क्या करते हैं? सुनते हैं। और एक ग्रुप ऐसा है जो अपने आप को धोखा देता है। क्यों? क्योंकि वो महज सुनता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। और एक ग्रुप ऐसा है जो सुनता है और फिर उस पर अमल करता है। और इसको मेरे और आपके खुदावंद ने अपनी जमीनी खिदमत में बहुत खूबसूरती से हमें सिखाया इस बात को। खुदावंद का शुक्र है कि खूबसूरत माहौल और खूबसूरत बुनियाद खुदावंद ने रखी है हमारे लिए, जो हम सुनना चाहते हैं और महज सुनने वाले नहीं बल्कि समझना भी चाहते हैं और कबूल भी करना चाहते हैं, ताकि अमल हमारी जिंदगी में पैदा हो। मेरे और आपके खुदावंद ने सेम इसी तरह अपनी जमीनी खिदमत में इन दोनों का जिक्र किया, और एक को अक्लमंद कहा और एक को बेवकूफ कहा। ये अक्लमंद और बेवकूफ इस तरह नहीं कहा कि एक वो जो मुझ पर ईमान लाया और मेरी बातें सुनी और ईमान लाया वो अक्लमंद है, और एक ऐसा है जिसने मेरी बातों को रद्द किया, वो बेवकूफ। दोनों के बारे में लिखा है कि दोनों ने मेरी बातें सुनी। कितनों ने? दोनों ने, एक ने नहीं, दोनों ने सुनी। और उनमें से एक क्या ठहरा? अक्लमंद, और दूसरा क्या ठहरा? बेवकूफ। क्यों? क्योंकि अक्लमंद वो ठहरा जिसने जब यीशु मसीह की बातों को, उस कलाम को सुना तो उसे संजीदा लिया, उसे वजन दिया, उसे संजीदा लिया, उसका यकीन किया। और बड़ी खूबसूरती से खुदावंद ने आसमानी घर मुझे और आपको एक ममार बना दिया, एक बिल्डर बना दिया। खुदावंद का कलाम जो उसका यकीन करेगा और उसको
दिल से ईमान लाएगा, जबान से इकरार करेगा, वो कलाम में खुदावंदी में ये कुदरत है कि वो मुझ में और आप में से होकर तामीर करेगा। खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती से अगर उसे देखें तो आसमानी घर का जो तस्वर खुदावंद ने दिया है वो मुझे और आपको दिया है। आपके पास खुदावंद ने ये हक दे दिया, इख्तियार दे दिया कि आप आसमानी घर या जमीनी घर बनाए। सेम कलाम में से, कलाम दो तरह का नहीं है, यीशु मसीह का कलाम है और एक ही कलाम है, एक ही खुशखबरी है, सामने वाले पे मुनस्सर है। वो कायम रहने वाला घर बनाता है या बर्बाद होने वाला घर बनाता है। कि मेरे लिए आज बहुत बाबरकत है और यकीनन हमारे सब के लिए है क्योंकि वो हर रोज अपने कलाम को ताज़ा हमारी जिंदगियों में जब हमें समझ आती है, जब हमारी रूह में उतरता है, तो ताकि हम यूं सर हिलाकर फैसला कर सके। मैं जब वक्त निकाल के आ ही जाता हूं तो मैं बेवकूफ नहीं ठहरूंगा। मैंने वक्त जब निकाल लिया, मैंने दिल खोला, मैं उसके घर में आ भी गया और उसका कलाम सुन भी रहा हूं, तो सर मारकर अपने आप से कहूं, मत अहमक और बेवकूफ बन, अक्लमंद बन जा और अपने उस घर को जो मुस्तकबिल का है उसे उस चट्टान पर जो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, अपने उस घर की बुनियाद उसके ऊपर रख ले। क्योंकि आंधियां और तूफान दोनों घरों पे आई है। आजमाइशें ऐसा नहीं है कि जो चट्टान पे बना है उस पे आंधियां, उस पे तूफान, उस पे लिखा है मी बरसा, आंधी तूफान आए दोनों घरों पर, लेकिन एक जो है वो कायम रहा और एक तबाह बर्बाद हो गया। अब सोचे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जिस दिन मींह बरसे या आंधी आए उस दिन घर बना पाए। कितने हैं जो ये जानते हैं कि कब मींह बरसने वाला है, कब आंधी आने वाली, कब तूफान आने वाला है? कोई है? ये आंधी, ये यीशु मसीह ने जो बात की है कि मींह बरसा, आंधी और तूफान आया, ये कब की बात है? ये यीशु मसीह की आमद है, ये दूसरी आमद है, ये दुनिया के खात्मे की तरफ है। अब सोचें कि कौन है हम में से? कोई है? नहीं है। किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो प्री प्लान सोचे कि लो जी आंधी आ गई, बस फटाफट अपना। ये बुनियाद कब? अभी, इसी घड़ी और इसी लम्हा। इसीलिए फरमा दिया कि यही नजात का दिन है और यही मकबूलियत की घड़ी है। वक्त को गनीमत जान और उसे कल पे ना ले जा। अक्लमंद वही है जो अभी इसी घड़ी इसी लम्हा चट्टान पे अपना घर बनाए। और वो कौन है? जो महज सुनने वाला नहीं, उसे बार 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 सुनने के लिए, समझने के लिए, कबूल करने के लिए और अपनी जिंदगी में उसे पूरा होता हुआ देखने के लिए तड़पता है। हम पर वाजिब है, हम पर लाजिम है। मत इंतजार करे कि अभी तो बहुत वक्त है। ये अहमक और बेवकूफ़ों की ये बात है। आने के वादा का हाँ, ये ना सोचे कि उसने आने में देर की। यूं सोचे कि वो किस कदर मेहरबान है जिसने मुझे बचने का मौका दिया है। अपनी सोच को बदले। ये ना सोचे कि उसने आने में देर की। उसके तहम्मुल को नाचीज ना जाने, उसकी शुक्रगुजारी करे कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो मेरी हलाकत नहीं चाहता, वो आपकी हलाकत नहीं चाहता। आए, एक बार फिर खुदावंद ने हमें वक्त दिया है, मौका दिया है कि हम इस बात को अपनी जिंदगी में संजीदा ले ले, जहां तक मुमकिन है इसे पकड़ ले कि मैं अपने घर की बुनियाद चट्टान पर, मसीह मसलूब पर रखूंगा, ताकि मींह बरसे, आंधियां आए, तूफान आए, वो घर हमेशा कायम रहे। अगर किसी भी तरह से बहुत सारा वक्त बेवकूफ़ी में गुजर गया, आज तौबा का दिन है। आज अपनी कमजोरियों कोताहियों को मानने का वक्त है। आज उसके हजूर अपना दिल उंडेल दीजिएगा। कोई बात उससे छिपी नहीं है, लेकिन खुदावंद इकरार चाहते हैं।